السلام علیکم ناظرین، میں عمران ارشد حاضر خدمت. میری دست بستہ درخواست آج کا پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کے جو عزیز و اقارب، بچے، چھوٹے بڑے پیارے دوست احباب ڈاکٹرز ہیں، ہاتھ پاؤں جوڑ کر آپ نے ان کو یہ پروگرام دکھانا ہے. ان کو پکڑ کر بٹھا لیں اپنے پاس، ایک چائے کا کپ انہیں دیں، بلکہ نہیں سوری پانی کا ایک گلاس دیں اور انہیں کہیں کہ پتر ایتھے بہ جا تے اے ویکھنا ہی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس معاشرے میں عوام کی بڑی تعداد یہاں تک پہنچ گئی ہے، لٹرلی نکو نک ہو گئے. ایک اذیت، ایک تکلیف، ایک پریشانی. اگر کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا اور وہ علالت کا شکار ہو گیا، وہ تو ایک اذیت ہے، وہ قدرت کی طرف سے ظاہر ہے، اس کے لیے قدرت نے انسان کو سہولیات دی ہیں اور وہ سہولیات ان کے ہاتھ میں، یعنی جو اپنے آپ کو نام نہاد مسیحا کہتے ہیں. اتار دیں یار اپنے ناموں کے ساتھ سے اگر آپ واقعی نہیں ہیں تو. کیوں؟ کیونکہ آج میں آپ کو پوری ایک والد کی کہانی سنانے جا رہا ہوں. میرا ریسنٹلی بچہ انتقال کر گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور ہماری عافیت کے ساتھ اچھے مقام پر ملاقات کروائے اور اس کو روز محشر ہمارے لیے ڈھال بنائے. مجھے اللہ پر راسخ یقین ہے کیونکہ یہی اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے. لیکن اس معاشرے میں جہاں پر آپ کو ہیلتھ فیسلٹیز کا معاملہ آتا ہے کہ آپ کوئی صحت کا معاملہ کریں، یو آر بینگ پیڈ فار دیٹ، مائنڈ اٹ، یو آر بینگ پیڈ فار دیٹ. اور آپ کو ریاست نے پڑھایا ہوتا ہے، آپ کو ریاست نے آپ پر خرچے کیے ہوتے ہیں عام آدمی کے. اسی بچے جس کے علاج میں آپ کہیں نہ کہیں کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ کے پیسے کے ساتھ آپ کو پڑھایا جاتا ہے، پھر آپ کو تنخواہیں دی جا رہی تھی، نسل در نسل آپ کو سنبھالا جاتا ہے. ظاہر ہے ہر ڈاکٹر برا نہیں ہے، لیکن آج میں بات صرف ان ظالموں کے ساتھ کروں جو ڈاکٹرز کے لبادے میں ظالم ہیں. میرے ساتھ محمد احسن موجود ہیں. احسن بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران بھائی کیا حال ہے؟ احسن کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا ہے. ان کے گھر میں دوسری تیسری جنریشن میں پہلی بیٹی آ رہی ہے اور بیٹی کے بعد 3 مہینے 20 دن اس کو ہو چکے ہیں. یہ سولی پر لٹکا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو سولی پر لٹکایا گیا ہے. ایک تو علالت ہو نا تو ڈاکٹر اچھا کاؤنسل کر دے، سمجھا دے، بتا دے، یار زخموں پر مرہم رکھا جاتا ہے، انسان کہتا ہے ٹھیک ہے یار اللہ کی رضا ہے. لیکن اگر بدبخت لوگ وہاں پر اب اس کے بچے کے باقاعدہ بون میرو سیمپل چوری ہونے کا یہ کلیم کرتا ہے. سی ایم پورٹل پہ یہ گیا جھنڈی، یہ ایم ایس کے پاس گیا جھنڈی. ڈاکٹر دھمکی لگا کر کیا کہتا ہے؟ میں یوں کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ 2 فائلیں پھٹنی اور پرچہ. میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ چلڈرن ہاسپٹل میں بچہ مر گیا، اس کے باپ کو اس کے جنازے میں شامل نہیں ہونے دیا گیا. کیا کہا جائے اس کو؟ سنیں گے ان کی کہانی ان کی زبانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ آپ کے لیے آسانی کرے اور نالین فاطمہ بیٹی کو اپنی پناہ عطا فرمائے اور آپ اس کو ہنستا کھیلتا ہمیشہ اس کو اپنے گرد دیکھیں اور یہ بچی آپ کے لیے بڑی عافیت والی بچی ہو. آمین. لاہور سے آپ کا تعلق ہے؟ شیخ پورہ سے؟ ابھی لاہور میں رہتا ہوں میں، لیکن ابائی گاؤں ہمارا جو ہے نا وہ شیخ پورہ. ابھی آپ کی بچی کے بون میرو کی چوری کا معاملہ کوئی جی ایسے یا بون میرو غائب ہوا ہے، ہوا کیا ہے وہ بھی آپ نے بتانا ہے. لیکن میں سٹارٹ سے چاہوں گا جس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت دی، آج میں پوری تسلی کے ساتھ میں صرف آپ کو سننا چاہتا ہوں. بسم اللہ کیجیے گا. جی بہت شکریہ عمران بھائی، آپ مجھے سن رہے ہیں، مہربانی. ایسے ہے کہ 14 جون کو جو ہے نا میری بیٹی پیدا ہوتی ہے مارننگ میں، صبح 10 بجے کے درمیان، 10 ساڑھے 10 بجے کے درمیان. ٹھیک ہے. بیٹی پیدا ہوتی ہے، دن جو ہے وہ گھر میں گزر جاتا ہے خوشیوں میں کہ اللہ پاک نے نعمت دی ہے. کتنے عرصے بعد یہ بیٹی پیدا ہوئی؟ یہ ہمارے خاندان میں 34 ایئر کے بعد اللہ پاک نے ہمیں رحمت دی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، چاو ہی نہیں اتر رہے ہوں گے. ایسے ہی ہے. پہلے میری سسٹرز ہیں 2، لیکن وہ ایک دن کی تھی، وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. مطلب کہ 3 ماہ اس بچی نے سروائیو کیا ہے. مطلب کہ یہ میرے خاندان کی 34 ایئر کے بعد 34 سال بعد. ہاں جی، جو مطلب ابھی اللہ حفاظت کرے. 3 منتھ 20 دن جو ہے نا سروائیو کر رہی ہے، وہ بھی صرف ہاسپٹل میں ہی، گھر میں نہیں. پہلے دن یہ جب دن گزر جاتا ہے، رات کو یہ مدر فیڈ نہیں کرتی، سارا دن گزر جاتا ہے، یہ دودھ نہیں پیتی. ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی مسئلہ ہے، ہم اسے اٹھاتے ہیں، کوشش کرتی رہتی ہیں اس کی والدہ کہ اس کو دودھ پلایا جائے،
घर का या जैसे भी कुछ भी उनकी तो कुछ ना कुछ इसके कुछ पेट में दिया जाए। जाए, लेकिन ये कुछ भी नहीं खाती। ठीक है। हमने इसको रात को ही फर्स्ट नाइट ही, बच्ची पैदा कहाँ हुई थी? ये शेखपुरा में ही प्राइवेट घर पे ये ना डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी है इसकी। घर पे डिलीवरी खुद करवाई थी या नहीं, हुई थी? पास ही उनके जो एक क्लिनिक है, हाँ। तो वहाँ पे जो है ना वो गांव में जिस तरह आपको पता क्लिनिक होते हैं, दाइयाँ। हाँ जी, नॉर्मल। पहले तो माफ कीजिएगा, यही गलत था, आपको बच्ची को अस्पताल ले जाना चाहिए था। 12 लागे चले, कोशिश थी हमारी हाँ। हॉस्पिटल, लेकिन वक्त नहीं मिला कि हॉस्पिटल। अच्छा, वक्त नहीं मिला, वक्त बाय नहीं चॉइस नहीं किया, वक्त हाँ नहीं जी, मिला। वक्त ठीक नहीं है। मिला, वरना हमने हॉस्पिटल ही जो है ना ठीक है। जाना था। अब क्या होता है, इसकी तबीयत खराब हो जाती है, हम इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल शेखपुरा में, नबीपुरा के पास है। वहाँ लेके जाते हैं, वो कहते हैं कि इसको ना ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको ऑक्सीजन लगा कर रखनी है। उन्होंने इसको नर्सरी के अंदर एडमिट कर माथा नीला हुआ होगा। दिया। ऐसे ही है जी, ठीक है। नर्सरी के अंदर एडमिट कर दिया। और 5-6 दिन उन्होंने ऐसे ट्रीटमेंट चलता रहा उनका। जब वो बोलते थे, सारे दिन में एक आधी दफा जाके मुलाकात करने का मौका मिलता था, वो जाके कभी मैं चले जाता था, कभी मेरी वालदा चली जाती थी, हम जाके होके वापस आ जाते थे, ज्यादा देर रुकने नहीं देते थे। ठीक है। अब वहाँ पे 6 दिन गुजरे हमें, तो उन्होंने हमें छुट्टी दे दी कि आपकी बच्ची ठीक हो गई है, ठीक है। आप से ले जाएं। आपने खुशी मनाई? हम फिर से खुश हो गए कि चलो शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, घर चलते हैं, ठीक हो गई है। मैंने उसको लिया, मैंने रास्ते में से मिठाई ली, सारा कुछ, मतलब हर चीज़ ली कि मैं घर जाके मोहल्ले में बांटूंगा, मेरे दोस्तों को उनको बताऊंगा कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई है। लोग कहते हैं कि बेटी पैदा हुए और परेशान होते हैं वो, ठीक है। मुझे इतनी खुशी थी कि मुझे जब फ़ोन किया गया कि आपके घर में ना बेटी पैदा हुई है, पहले मुझे बताया गया कि आपके अल्लाह मुबारक हो, मैंने 5 kg मिठाई ली। जब मुझे बताया गया, दोबारा फ़ोन किया कि आपके घर में अल्लाह ने रहमत दी है, मैं वापस गया वो मिठाई लेके, वो वापस गया, मैंने 20 किलो ली। माशाल्लाह। मैं कहा अल्लाह ने मुझे रहमत दी है। मैं लेके जब मैं घर जाता हूँ, वो खुशी तो एक अपनी जगह पे है। आगे चलते हैं, ठीक है। 6 दिन गुजरते हैं, मैं घर लेके जाता हूँ, वो मुझे दोबारा से रात को मेरी बेगम बोलती है कि ऐसे नहीं, इसकी तबीयत जो है ना फिर से खराब हो रही है। मैंने कहा अभी क्या हो रहा है? उन्होंने बताया कि इसको झटके लग रहे हैं। हो, ठीक है, फिट्स है। हाँ जी। मैंने कहा इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं, लेकिन मैंने उनको बोला, मैंने कहा हो सकता है ये फीड नहीं कर रही, दूध नहीं पी रही अभी। 6 दिन में उसने दूध नहीं पिया? 6 दिन में तो उधर मेडिसिन चल रही थी ना, उन्होंने तो दूध पिलाने की इजाजत नहीं दी हुई थी। हाँ। हॉस्पिटल में तो वो नहीं अलाउ कर ड्रिप लग रही थी। ड्रिपें लग रही थी। तो आपने नहीं पूछा कि जब मुझे घर भेज रहे हैं तो मैं वहां पे जाके क्या करूंगा, दूध तो बच्ची पी नहीं रही है। अभी हमें इस चीज का पता ही नहीं था कि उसके तालू के अंदर सुराख है। ओए होए। डॉक्टरों के पास 6 दिन रहने के बावजूद उन्होंने बताया नहीं हमें, ना उन्होंने चेक किया, उन्होंने बस ये देखा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, ठीक है इसको चेक करते रहो। ये नहीं देखा कि उसके तालू में सुराख है, वो दूध तो पी ही नहीं सकती। ठीक है, जब हम उसको घर लेके गए, उसको वही झटके लगने लग गए, उसकी आंखें घूम रही, परेशान हम हो गए। फौरी तौर पे जो है ना हम उसे दोबारा से हॉस्पिटल ले गए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में दोबारा से। डॉक्टर ने चेक किया अच्छे तरीके से और उसने हमें बताया, ये पहले दिन हमें उसने बताया कि इसके तालू के अंदर सुराख है, जिसकी वजह से ये अपनी मदर फीड नहीं कर सकती। ठीक है, ना ये मदर फीड कर सकती है और ना ये दूसरा, मतलब कि जो फीड होते हैं चीज खा पी सकती, कोई भी चीज जो है ना ये इसको नहीं पी सकती। इसके लिए स्पेशल जो है ना वो डॉक्टर साहब आपको लिख के देंगे फीडर, वो ही इसके लिए यूज होगा, उसके अलावा ये यूज नहीं कर सकते आप। ठीक है, मैंने कहा ओके। अब वो उन्होंने क्या किया, एडमिट कर लिया इसको। एडमिट करने के बाद ये ऐसी प्रोसीजर 3-4 दिन गुजरता रहता है, उसको झटके लगते रहते हैं मुसलसल। मुझे डॉक्टर साहब बुलाते हैं, मुझे कहते हैं जी मुझे शक है इसको गर्दन तोड़ बुखार हो गया। शेखपुरा में? हाँ जी, ये शेखपुरा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। अच्छा जी। मुझे कहते हैं जी मुझे शक है इसको गर्दन तोड़ बुखार हो गया। मैंने कहा इसका क्या इलाज है? मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम हो रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये क्या होता है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि गर्दन तोड़ बुखार क्या होता है। ठीक है, ठीक है, मैंने उन्हें पूछा कि ये होता क्या है, क्या मसला है? कहते जी इसके दिमाग के अंदर ना इन्फेक्शन हो गया, एक झिल्ली होती है उस पे। ठीक है, उन्होंने मुझे बताया कि इसके दिमाग में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से उसको झटके लग रहे हैं। उसकी हम इसको मेडिसिन चला रहे हैं, 14 दिन मेडिसिन चलेगी, उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या करना आगे। ठीक है, मैंने वो 10-12 दिन उसकी मेडिसिन चली। उसके बाद मुझे एक डॉक्टर मिले, मैंने उन्हें पूछा अच्छे तरीके से, उन्हें बताया मुझे कि बेटा इसको चुप करके ना लाहौर ले जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं होना इसका।
ठीक है, मैं गुस्से में ना वापस उस डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा इस बच्ची को हुआ क्या है मुझे बताएं। कहते जी इसको गर्दन तोड़ बुखार है, हमें शक है। मैं क्या पक्का कैसे होएगा ये भी तो बता दे मुझे। अब 12-13 दिन हो गए मेडिसिन लगा रहे हैं, मुझे पक्का करें कि ये ऐसे होगा। लेकिन मुझे मेरे दोस्त ने, मैं मुत्तफिक नहीं हुआ उससे, मेरे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि चुप करके जाके एमएस के पास जाओ, वहाँ थोड़ा सा उन्हें बताओ कि यार हमें लाहौर शिफ्ट कर दें, हम यहाँ पे नहीं रह सकते, मेहरबानी आपकी। ठीक है। मैंने उनके अगर रिक्वेस्टें की, सारा कुछ किया, लेकिन उन्होंने एक दिन बाद जो है ना मुझे लाहौर रेफर कर दिया। ठीक है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में? जी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। इसी दौरान में हमारा 1 महीना गुजर जाता है, बच्ची 1 माह की हो जाती है। 1 महीना आप शेखुपुरा ही रहे? हाँ जी, कभी घर जाते हैं, कभी घर से वापिस हॉस्पिटल। अब 1 महीने की बच्ची होगी और आप लाहौर पहुंच गए? लाहौर पहुंच गए। 26 जुलाई वाले दिन जो है हम लाहौर पहुंचते हैं और हमें इमरजेंसी में 1122 वाले जो है ना वो एडमिट करवा के वो चले जाते हैं। बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हुई थी इसलिए आप एम्बुलेंस पे आए थे? जी जी, ऐसे ही है। उसको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम भी था और उसके बाद उसको झटके मुसलसल लग रहे थे। अच्छा जी, ठीक है। है। यहाँ पे जब उन्होंने एडमिट किया, उन्होंने अच्छे तरीके से चेकअप किया, थोड़ी रात उन्होंने ऐसी गुजारी है। उसके बाद जो है उन्होंने सुबह के टाइम हमें वार्ड में शिफ्ट कर दिया, 1st फ्लोर चिल्ड्रन हॉस्पिटल मेडिकल वार्ड 4 में। ठीक है। यूनिट 4 में, रूम नंबर 38 में। ठीक है, हमें शिफ्ट कर दिया। अब सुबह को डॉक्टर जो है जैसे उनको चेक करते हैं, डॉक्टर आते हैं उसको चेक करते हैं अच्छे तरीके से, जो भी उन्होंने जो राउंड होता है वो चेक करते हैं। पहले दिन पे मैं दफ्तर गया होता हूँ, मैं शाम को आता हूँ। वो मेरी बेगम को बोलते हैं कि इसके फादर जब आए उसके साथ हमारी मुलाकात करवानी। ठीक है, डॉक्टर ने कहा? डॉक्टर ने बोला। आप मुतमईन थे अभी तक? अभी तक मुतमिन था कि मेरी बच्ची ठीक है, 1 आधा दिन रहेगी तो घर चले जाएंगे। अच्छा जी। अब मुझे मेरी वाइफ फोन करती है, मुझे कहती है कि ऐसा डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया, आप ऐसा करें जल्दी आ जाइएगा ऑफिस से, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे। मैं ऑफिस जाता हूँ, उधर से हॉस्पिटल जाता हूँ। डॉक्टर मेमूना जो इसको ट्रीट कर रही थी उनके साथ मेरी मुलाकात होती है। अच्छा जी। इनके फीडबैक पे जो इनके साथ दूसरे डॉक्टर थे उनका नाम था डॉक्टर आसिफ। अब डॉक्टर मेमूना मुझे बोलती हैं कि बेटा आपकी बच्ची को गर्दन तोड़ बुखार हो गया। ठीक है। मेरा वही क्वेश्चन था जो मैंने शेखपुरा वालों को किया। मैं कहा मैडम हो गया है या शक है? उन्होंने बोला कि नहीं हो गया है, लेकिन फिर भी हम सैंपल लेंगे, इसकी कमर का रीढ़ की हड्डी का पानी होता है वो बोन मैरो जिसे बोलते हैं, वो लेंगे, उससे पता चलेगा कि इसके दिमाग में कितना इन्फेक्शन है। उसके बाद हम आपको बता सकते हैं कि इसकी आगे डोज कितने दिन चलेगी, इसको कितने दिन का जो है ना वो प्रोसीजर चलेगा। मुझे उन्होंने बताया कि यहाँ तो इसको 14 दिन की मेडिसिन लगेगी या 21 दिन की मेडिसिन लगेगी। जब बोन मैरो की रिपोर्ट पे पता चलेगा। हाँ जी, रिपोर्ट पे पता चलेगा। अब रिपोर्ट क्या होता है, 29 तारीख को आपको अभी उम्मीद लग गई कि ठीक है शायद इस तरह बेहतर हो जाए? मुझे ये था कि चलो, मुझे तो बोन मैरो का नहीं पता था कि क्या बोन मैरो क्या होता है, मुझे इसका भी नहीं पता था। मैंने अपने डॉक्टर से कंसर्न किया कि ये बोन मैरो मांग रहे हैं, कह रहे जी इसकी कमर का पानी लेना है। सुना जरूर था कि कमर का पानी निकालना नहीं चाहिए, बड़ा खतरनाक होता है, इंसान जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन मेरे दिमाग में वो भी चीजें चल रही थी, लेकिन ये चीज भी चल रही थी कि मेरे खानदान में 34 ईयर के बाद बच्ची पैदा हुई है, अल्लाह ना करे कि ये बोन मैरो के चक्कर में अगर उसे कुछ हो गया ना, मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ना नहीं है। मैंने कहा मैं अपने घर वालों से मशवरा करूंगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका मैंने आपको सैंपल देना है कि नहीं देना। अच्छा जी। मैंने घर वालों से पूछा कि वो ऐसे ऐसे कह रहे हैं, मैंने अपने डॉक्टर साहब से भी पूछा, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं कि हमने सैंपल नहीं देना। लेकिन मैं उनके खिलाफ जाके मैंने बोला कि मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा कि इसको सैंपल दे दो, कोई मसला नहीं है, इसके अलावा कोई हल नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, दिया जाता है, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है। मैंने वो मैडम ने मुझे बोला कि यहाँ पे लिख दे कि बोन मैरो लेना है, कि इसको कितना दिमाग में इन्फेक्शन है उसको चेक करने के लिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से लिखवाया जाता है कि अगर इस दौरान कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक है, आगे जी। मैंने वो लिख के दिया, सिग्नेचर करके दिए। अब ये 10:30 बजे का टाइम होता है, 11 साढ़े 11 बजे के टाइम 29 जुलाई को, ठीक है, सैंपल ले लिया जाता है। 29 जुलाई को आपका
सैंपल ले लिया गया दिन में 10 बजे जी। अब मुझे कहते हैं अच्छा, जब ये सैंपल लिया गया तब वहाँ पे पास कौन मौजूद था? मेरी वाइफ अंदर थी और बच्ची मेरी के पास थी? हाँ जी। लेकिन जब वो सैंपल लेने के लिए आए, इन्होंने मेरी वाइफ को जो है बाहर निकाल दिया। कोई भी उस टाइम पास मौजूद नहीं था? कोई भी मौजूद नहीं था। और मुझे बोला गया डॉक्टर मेमूना की तरफ से, डॉक्टर मेमूना मुझे कहती हैं कि मैं ना इसके सैंपल लूंगी दो सैंपल निकालूंगी। मुझे कहती हैं ये सैंपल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन 2 क्यों? मुझे कहती हैं कि एक जो है आप अपने पास रखेंगे, मैं आपको दूंगी, एक मैं सैंपल आप अपने पास जी रखेंगे। मुझे बोला गया एक सैंपल आप अपने पास रखेंगे, दूसरा मैं रखूंगी। डॉक्टर मेमूना आप ये कह रही हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स लाहौर में आपको ये कह रही हैं कि मैं 2 जगहों पर सैंपल लूंगी बच्ची के बोन मैरो के, एक सैंपल बाप अपने पास रखेगा, एक सैंपल डॉक्टर अपने पास रखेगा। ये कैसे अमकाना बात है? मुझे कहती है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सैंपल, अल्लाह ना करे मिसप्लेस हो गया तो मैं आपसे दूसरा मैं आपसे मांगूंगा। अगर वो कहती है कि मेरे पास जो है वो खड़ी गया तो मैं थर्ड तो ले लाऊंगी। हाँ जी, आपसे ले लूंगी। ठीक है। अच्छा जी। मैं उस वक्त कंफ्यूज था, मैंने भी कहा ठीक है मैडम। ये बात बाद में मेरे माइंड में आई कि ये 2 मांग क्यों रही है, जब मेरे साथ मैंने इनको, और आप लिख के दे चुके हैं? मैंने लिख के दे दिया था। मैं कंफ्यूज था, परेशान था, मेरी बच्ची है कि चलो अल्लाह करे ठीक हो जाएगी। मैंने कहा मैडम जो लिखवाना ना मुझे बता दें, मैं सिग्नेचर करके। जाहिर है क्या अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें, बच्ची ठीक हो किसी तरह। इन्होंने जो लिखाना लिखा लो, ले लिया। अब इन्होंने बोला कि 12 घंटे या 24 घंटे के दौरान आपको इसकी सैंपल की जो है 12 से 24 घंटे की रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये सैंपल इन्होंने अकेले में लिया, उस वक्त इनके पास कोई और मौजूद नहीं था, इन्होंने आपको, आपकी अहलिया को, सबको बाहर निकाला। ठीक है। अब ये अगले दिन जो है 30 जुलाई वाले दिन मेरी वाइफ को बोलते हैं, लिख के देती है ये मैडम उसको कि ये जाके लेबोरेटरी से सैंपल की रिपोर्ट ले आओ। 30 जुलाई को? 30 जुलाई को वो लेबोरेटरी जाती है, लेबोरेटरी वाले को जाके बोलती है कि ये सैंपल की रिपोर्ट दे दे मुझे। आगे लेबोरेटरी वाला कहता है कि इस तरह का सैंपल तो रिसीव ही नहीं हुआ मुझे। अच्छा। इसकी कोई एंट्री नहीं है मेरे पास। यानी सैंपल लिया गया था 10 बजे जुलाई 29 को जी, बोन मैरो का जी, और 30 जुलाई को अगले दिन लैब कह रही हमें तो सैंपल मिला ही नहीं, हमें मिला ही नहीं है, ये वापस। और आपको इस टाइम पे आपके मुताबिक डॉक्टर मेमूना ये कह चुकी है कि मैं 2 सैंपल लूंगी। जी ऐसे ही है। एक सैंपल आपको दूंगी, एक अपने पास रखूंगी। आपको कोई सैंपल दिया? मुझे बोला गया कि उसके जो हमने सैंपल लिया ना उसमें से 1-2 कतरे निकले बड़ी मुश्किल से। हाँ। एक सैंपल के लिए निकले हैं, दूसरा सैंपल नहीं निकल सका। यानी उन्होंने कहा कि दूसरा निकला ही नहीं, निकला और ही पास भी किसी को नहीं खड़ा। हमने नहीं देखा। आगे चलें। वो मेरी वाइफ दोबारा से फिर जाती है, जब दूसरी दफा जाती है तो वो लेबोरेटरी वाला अपनी SOPs को जो है ना वो रद्द करते हुए उसको जो है ना अंदर बुला लेता है। वो कहता है कि बाजी ये चेक कर लें रजिस्टर, इसके ऊपर पता है कि बोन मैरो कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है? सर ये हमें तो बिल्कुल भी नहीं ना पता था। अगर इतना पता होता तो हम ये कभी भी देते ही ना इनको। नहीं, देना तो पड़ना था, बच्ची की सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन उसको तो बड़ा मॉनिटर करना पड़ता है। बहरहाल बात मुकम्मल कीजिए। मेरी वाइफ को वो अंदर बुला लेता है, वो कहता है कि अभी ये रजिस्टर है। उसको तो अपनी पड़ गई ना कि मेरे पल्ले ना पै जाए कि सैंपल। उसके पास रश बहुत ज्यादा था। उसने कहा ये 29 और 30 का 28, 29, 30 का इसके अंदर एंट्रीज है, आप इसके ऊपर चेक कर लो। अगर नलैन फातिमा के नाम की कोई भी इस तरह की रिपोर्ट का कोई रजिस्टर होगी तो मैं आपको रिपोर्ट दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास इस तरह की कोई सैंपल आया ही नहीं है, मैं कहां से दूं आपको रिपोर्ट। और मेमूना डॉक्टर ने आपका सैंपल ले लिया है, उसने लैब कहती है हमें आया नहीं। हमें आया नहीं। आगे चलें। अच्छा नाज़रीन, एक चीज याद रखिएगा कि व्हेन इट कम्स अबाउट बोन मैरो सैंपल, तो ये इतना कीमती और इतना इम्पोर्टेंट इशू है कि आई टॉक टू द डॉक्टर्स, और जैसी जैसी बातें उन्होंने मुझे बताई हैं कि खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर ये इसके साथ पैसा भी जुड़ा हुआ हो सकता है। आई डोंट नो अबाउट दिस केस, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा जी। अब मैं दफ्तर गया होता हूँ, मैं 1-1.5 महीने के बाद दफ्तर जाता हूँ। मुझे वो कॉल करती है मेरी वाइफ, मुझे कहती है एहसन जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। मैंने कहा क्या हुआ है?
कहते जी सैंपल गुम हो गया और वो दोबारा से सैंपल लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ओए होए होए, अच्छा जी, रेडी बैठे हुए हैं। मैंने कहा खबरदार, तुमने अब नालैन के पास से उठ के साइड पे नहीं होना। हाँ, ये किसी तरह का भी सैंपल के कहीं मैंने कोई ड्रिप लगानी है, मैंने कहीं ये मैंने इसको इंजेक्शन लगाना है, अभी कुछ नहीं लगाने देना हाँ, जब तक मैं ना आ जाऊं। आपने इनको हाथ नहीं लगाने देना, आप उसके पास बैठो। मैं फौरी तौर से दफ्तर से निकलता हूँ, मैं पहुंच जाता हूँ, मैं उससे पर्ची लेता हूँ जो कि डॉक्टर ने लिख के दी थी, सिर्फ उसके ऊपर CSF और नालैन फातिमा लिख के दिया हुआ था। लास्ट पे मेरी फाइल का 4150 और कोड नंबर है, वो लिख के दिया हुआ था, वो भेज रही थी। मैं गया नीचे लेबोरेटरी वाले के पास, मैं खुद गया। फिर मैंने उससे जाकर बोला कि भाई मेहरबानी है यार, ये सैंपल मेरी बच्ची का कल का आया हुआ है आपके पास। उसने बताया मुझे कि यार लेडी, और डॉक्टरों पर यही कह रही है कि लैब में जा चुका हुआ है। डॉक्टर चक्कर लगवा रही है हमारे। अब मैं गया हूँ, मुझे कहती है, वो लड़का कहता है कि भाई आपकी वाइफ है या जो भी है वो आई थी, मैंने उन्हें रजिस्टर भी चेक करवा दिया है, मेरे पास भाई इस तरह का कोई सैंपल नहीं आया। आया होता, मेरा काम है, मैंने आपको उसकी रिपोर्ट देनी है, लेकिन मेरे पास नहीं आया। अब जो ये बात होती है, मैं चुप करके मैं ऊपर नहीं जाता हूँ, वार्ड में नहीं जाता। मैं क्या करता हूँ, उसी वक्त ही मरियम नवाज के पोर्टल के ऊपर, CM के पोर्टल के ऊपर कंप्लेन करता हूँ। बिल्कुल दुरुस्त किया आपने, ठीक है, शाबाश। इसलिए कि एक पढ़े लिखे और जिम्मेदार शहरी वाला काम किया, बजाय वहां जाके लड़ने मरने के आपने वजीर आला पंजाब का पोर्टल जो है उसको चूज किया। अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपको खैर जरूर मिली होगी। सर कुछ भी नहीं हुआ ना, कॉल करते हैं आगे से 4-4, 5-5 दफा कंप्लेन कर दी है, लेकिन वो आगे से यही है जी आपकी कंप्लेन जो है वो आगे डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया है। एक दफा फोन किया है, 30 जुलाई को किया है। आपने CM पोर्टल पे ये बताया कि मेरी बच्ची का बोन मैरो गायब हो गया? मैंने सारा कुछ डिटेल के साथ बताया उनको, हर चीज बताई है। अच्छा जी। मुझे कहते हैं जी थोड़े दिन में जो है ना इसको आपको फीडबैक मिल जाएगा। थोड़े दिन में? थोड़े दिन में, 7 डेज में। उन्होंने मुझे बोला 7 डेज में। मैंने उनको ये ऑन रिकॉर्ड कॉल के ऊपर बोला, मैंने कहा मैडम इतने दिनों में हो सकता है मेरी बच्ची की डेथ हो जाए, तो मैंने आपके फीडबैक का क्या करना है? मुझे आपके फीडबैक का क्या, जब वो मेरी बच्ची का रहे ही ना तो मैंने उसका क्या करना? एक दफा कंप्लेन की, कुछ नहीं हुआ, मैंने दोबारा कंप्लेन की, मुझे कहते हैं जी आपकी कंप्लेन फॉरवर्ड की हुई है। हाँ। कुछ नहीं हुआ। तीसरी कंप्लेन अभी करनी थी, उससे पहले ही फोन आ जाता है। कितने दिन में की 3 कंप्लेंट्स आपने? ये मैंने 1 महीना 10 दिन के अंदर ये 3 कंप्लेंट्स की हैं। डॉक्टर को बता दिया कि सैंपल नहीं पहुंचा लैब में? डॉक्टर साहब को बता दिया। डॉक्टर साहब को तो पता है, क्योंकि वो तो आराम से बैठे हुए, उनको पता है कि मिलना ही नहीं है, सैंपल तो पास ही उनके है, सैंपल तो लेबोरेटरी में गया ही नहीं। ऐसे होता है कि मैं MS के ऑफिस में जाता हूँ, इसी दौरान में कोई 4-5 घंटे गुजर जाते हैं। आप जो बात करें मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि मैंने जो डॉक्टर से पूछा है वो ये बताते हैं, मुझे माफ कीजिएगा, अल्लाह पनाह ता फरमाए, कि ये सैंपल्स सेल होते हैं, जहां तक की शिकायत आई है। मुझे बोला गया, MS के पास में गया हूँ, उन्होंने बोला कि आप इधर, पहले तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे वो। अच्छा, ठीक है, मैंने उन्हें बोला कि मेरी बच्ची का सैंपल ऐसे ऐसे मसला हो गया है, मिल नहीं रहा। कल 10 बजे मॉर्निंग से उन्होंने लिया हुआ है सैंपल, लेकिन अभी तक ना रिपोर्ट मिल रही है ना सैंपल मिल रहा है। मुझे कहते हैं अच्छा वेट करो बाहर। मैं फिर वहां पे गुस्से का थोड़ा सा मैं बोला, मैं कहा मेरी बच्ची को कुछ हो जाएगा, मैं बाहर वेट करता रहूं। लेकिन बस यहीं पे आके डॉक्टर्स ने कहना है कि जनाब सब हमारी गलतियां एक तरफ, ये जो तुमने उंगली इधर की है ना और जो तुम बोले हो ये एक तरफ है। यानी अब आप उस रेड जोन में दाखिल हो गए। बच्ची का इलाज गया एक साइड पे, अब आप रेड जोन में। अच्छा जी, यू आर इन हॉट वाटर्स। मैं एक बाप हूँ, मैं जो है वो बड़े तमीज के दायरे में रह के बात करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर मेरी बेटी का दर्द बोल रहा था कि मैं उनसे पूछ रहा था कि सर ये मसला हुआ है मेरे साथ, मुझे बताएं, जल्दी से बताएं कि किधर गया। 29 घंटे गुजरने के बाद कैमरे नहीं लगे हुए थे, सारा कुछ लगा हुआ है सर जी, ये सिर्फ उनके लिए लगे हुए हैं, उनका कोई मसला हो जाए तो उसके लिए लगे हैं, हमारे आम आदमी के लिए नहीं है वो कैमरे, हमें तो दिखाया भी नहीं जाएगा कुछ भी। आप ये कह रहे हो आम आदमी को फंसाने के लिए लगे हुए? हाँ जी, इनकी हरकतों के लिए नहीं लगे हुए। मैंने, उन्होंने मुझे बोला इसी दौरान के अंदर सुबह 9 बजे से हमारे ऊपर नीचे चक्कर लग रहे हैं।
اب MS کے پاس بیٹھے ہوئے ٹائم بات کرتے کرتے شام کے 4 بج جاتے ہیں, سیمپل نہیں ملتا ابھی تک. صبح 9 بجے سے بچی کا سیمپل تلاش کر رہے ہیں, 4 بج جاتے ہیں. اب مجھے MS صاحب کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں, اوپر چل جائیں, واٹ انچارج لیڈی ہیں ان کے ساتھ جا کے ملیں. میں نے انہیں کال کر دی ہے. اچھا جی, وہ ٹریس کریں گی آپ کا. اچھا, یہ کوئی پروٹوکول پیشنٹ آئے گا نا تو اس کے ساتھ بندہ جائے گا, انہوں نے کال کر دی. اچھا جی, مجھے کہتے ہیں کہ میں نے انہیں بول دیا ہے آپ جائیں, وہ آپ کو ٹریس کرے گی آپ کا سیمپل گیا کدھر ہے, آپ کو وہ بتائے گی. میں اوپر گیا ہوں, اب وہ اندر روم میں بیٹھی تھی, میں نے ایسے جا کے ان کو بتایا میڈم میں نلین فاطمہ کا فادر. آگے سے ان کے الفاظ حلفن یہ الفاظ تھے. مجھے کہتی ہے آپ نے کمپلین کی ہے ہماری. اچھا جی, آپ نے کون کہتا ہے؟ یہ جو وارڈ انچارج تھی لیڈی. اچھا جی, کہتی ہے آپ نے کمپلین کی ہے ہماری. ہمارا تو کوئی کنسرن ہی نہیں ہے MS کے ساتھ, آپ نے ہماری شکایت کیوں لگائی ہے؟ آپ کو یہ پتا ہے 32,000 روپے کی آپ کی بچی کو میڈیسن لگ رہی ہے ڈیلی. تو وہ گھر سے لا کے لگا رہے ہیں. میں نے یہ لفظ بولے ہیں اس کو, یہ تو گورنمنٹ آف پنجاب دے رہی ہے جو کہ آپ کے ٹیکس سے پیسے آتے ہیں. میں نے کہا آپ ہی اگر تو آپ گھر سے لا کے لگا رہی ہیں نا تو میں پیسے دے دیتا ہوں, لیکن مہربانی ہے آپ کی میری بچی کو ٹھیک کرتے, میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کیا, ایسے میرے ہاتھ سے فائل پکڑی اور مجھے کہتا ہے میرے پیچھے آ جاؤ. وہ مجھے ڈاکٹر میمونہ کے پاس پھر وہیں پہ جہاں سے چلے تھے. ہاں جی. اب ڈاکٹر میمونہ کے پاس جب جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کہتی ہیں آپ نے میری کمپلین کر دی ہے. میں نے کہا میڈم سیمپل نہیں مل رہا, میں نے تو اس چیز کی کمپلین کی ہے کہ میرا سیمپل نہیں مل رہا. آپ نے ایکچولی سیمپل کی ہی کمپلینٹ کی ہے. میں نے تو سیمپل کی کمپلین کی ہے, آپ نے لیا ہے اور میرا سیمپل مل نہیں رہا میری بچی کا, میں نے تو یہ بتایا. کہتی ہے آپ نے میری کمپلین کی کیوں ہے, سیمپل تو میرے پاس پڑا ہوا ہے, میں نے تو جمع ہی نہیں کروایا. یہ 29 گھنٹے کے بعد یہ میڈم کے الفاظ تھے. ابھی ہسپتال میں علاج کی کیا صورتحال ہے؟ ابھی ہاسپٹل میں علاج اس کا چل رہا ہے, آکسیجن لگی ہوئی ہے, خوراک کی نالی لگائی ہوئی ہے انہوں نے, ٹانگیں جو ہیں اس کی وہ اتنی ہڈیاں بن گئی ہیں. ٹھیک ہے, ٹانگیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بون میرو کے چکر میں جو انہوں نے بون میرو لیا ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں کوئی میڈیسن نہیں دی کہ یہ بچی کو درد کے لیے یا اس کی جو بھی مطلب کہ اس کی صحت کے لیے کہ یہ میڈیسن دیتے رہے جس کی وجہ سے اس کو کوئی انفیکشن نہیں ہوگا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میں نے آپ کی پوری بات سنی ہے, احسن میاں کیا وجہ ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹرز آپ کے ساتھ پرسنل ہوئے ہیں اور آپ کی بچی کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے کو نظر آ رہا ہے کہ سیمپل ہے, وہ باہر مارکیٹ میں 15-20 لاکھ روپے کا سیل ہو جاتا تو اس کو کیا چپ کر کے سینکڑوں ایسے ہی ہے. اگر سینکڑوں بچوں کے وہاں نکال رہے ہیں بون میرو, آپ جا کے دیکھیں نا وہاں پہ, صرف آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں, ایک سے دوسرے بچے کا وہ کہیں گے سیمپل لینا. میرے جیسا باپ جو ہے نا وہ کہہ دیتا لے لو یا, ہر کوئی نہیں یہی کہنا چاہیے, ظاہر ہے ان پہ کرنا چاہیے, لیکن اعتماد جس پہ کیا اگر وہی اس کو کاٹ لے تو کیا فائدہ. میری بچی اب جو ہے نا وہ کہتے جی ڈسیبل ہے, دماغ چل نہیں رہا, ٹھیک ہے, اب اس کو خوراک کی نالی لگا دی ہے. ابھی ایک ڈاکٹر وہاں پہ موجود ہے, ابھی ریسنٹلی کل کی بات ہے, مجھے کہتے جی آپ کو چھٹی دے رہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک ہو گئی ہے؟ نہیں, ہماری جو ہے نا وہ منگل کو جو ہے نا وہ ایمرجنسی ہوتی ہے, آپ کافی پرانے ہو گئے ہیں, آپ کو چھٹی دے رہے. اچھا جی. میں کہا کیوں دے رہے ہیں چھٹی؟ نہیں آپ ایسے کریں, یہ نالی لگی ہے اس کو 15 دن جو ہے نا اس کو نالی لگی رہنے دیں, اس کو خوراک نالی سے دینی ہے آپ نے, گھر لے جائیں. میں نے بولا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب چھٹی دے دیں مجھے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ایک چیز مجھے ویریفائی کر دیں, اللہ نہ کرے اس کی یہ اتر جاتی ہے, بچے تو کھینچ لیتے ہیں, ٹھیک ہے کھینچ لیتے ہیں, ابھی کل بھی انفیکشن بھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. میں نے کہا اگر یہ اتر جائے مجھے آپ لکھ دیں, میں آپ کے پاس واپس لے آؤں گا یا قریبی کسی ڈاکٹر کو بول دوں گا, وہ آپ کا لکھا ہوگا نسخہ لکھا ہوگا, اس کو پتا ہوگا یہ پرمیشن ملی ہے, ڈاکٹر نے دی ہے اس کو, تو وہ لگا دے گا. نہیں کہتا جی یہ تو میں نہیں لکھ کے دے سکتا. میں کہا پھر مجھے بتائیں کہ ہم ڈاکٹر ہیں, میں گھر پہ بیٹھ کے لگاؤں گا, پھر اس کو اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے, میں آپ کے پاس بھاگتا یہ ختم ہو جائے تو کیا چکر رہے گا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں صرف اس کو لے جاؤ, گھر لے جاؤ, اور آپ نے شیخ پورے سے واپس آنا. میں شیخ پورہ سے واپس آنا, اور میں نے انہیں بتایا کہ میرے قریب جو ہاسپٹل ہے وہ میرے گھر سے 12 سے 15 کلومیٹر دور ہے. تو مجھے کہتا ہے یہ اپنی فائل پکڑو, میں نہیں تمہیں دیکھ سکتا, ٹھیک ہے, یہ فائل پکڑو,
اگر جانا ہے چھٹی تو ہم چھٹی لکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ 7 دن بعد آنا, پھر آ کے چیک کرا لینا. میں کہا جی میری بچی فوت ہو جائے گی تو میں پھر آپ کو چیک کروانا. احسن میاں اللہ تعالیٰ آپ کے حال پر رحم فرمائے. مریم نواز صاحبہ, آپ والدہ بھی ہیں, آپ سی ایم بھی ہیں, تو دونوں رسپانسبلٹیز لگ بھگ ایک جیسی ہی ہیں. آپ کا اپنا دل کے قریب, آپ کے لوگوں کا معاملہ مجھے نہیں پتا, آپ کے اپنے دل کے قریب بات ہے کہ آپ شاید, جو میں نے سن رکھا ہے, آپ اپنے آپ کو پنجاب کے باسیوں کی ماں کہلوانا پسند کرتی ہیں, یعنی ماں جیسی محبت رکھنے کا دعویٰ کرتی ہیں. میری ہاتھ جوڑ کر دست بستہ درخواست, خدارا نظام صحت پر ایک نظر دوڑائیں. ان ڈاکٹرز کو خاص طور پہ یہ جو فرعون بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو اس چیز کے حوالے سے شاید اب تھوڑی سے سخت دانتوں کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں, کبھی ایک شٹل کاک پہنے, زبان بالکل کم بولیں, دھیمی آواز میں بولیں, شٹل کاک برقع پہنے, سیفٹی سیکورٹی آپ اپنے لوگوں کو کہیں گے, فوری طور پر اس کا بندوبست کر دیں گے. ایسے کسی ایک بیمار بچے کو گود میں اٹھائیں اور اپنی حیت کو, اپنی اپیرنس کو یکسر بدلیں. رات کے وقت کبھی چلڈرن ہاسپٹل لاہور جائیں, رات جائیں 12-1 بجے قریب, اور پھر صرف یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے, آپ کے بچے کے ساتھ ہوتا کیا ہے جو آپ کی گود میں, آپ کا ہی بچہ ہے نا, ظاہر ہے آپ سی ایم ہیں. اگر آپ نے 5-7-10 دفعہ یہ کر دیا تو میں لکھ کر دے سکتا ہوں کہ ان کو سوتے ہوئے بھی علاج کرنا یاد رہے گا. کسی کے ساتھ بدتمیزی سے نہیں بولیں گے. اپنی کسی وزیر کو بھیجیں, اپنے کسی وزیر کو بھیجیں, اپنے کسی ذمہ دار کو بھیجیں, اور یہ جو سو کالڈ سی ایمز ہیلپ لائن ہے نا, اس کا بھی آڈٹ کروائیں, بیکاز یہاں پر بھی بہت بے تحاشا ریڈ فلیگز ہیں. اس محمد احسن کی گفتگو صرف اس وجہ سے سنیے, ہو سکتا ہے ان کانوں کے لیے جن کانوں کے پردوں پر الفاظ گرتے ہیں اور ان کے لیے بے معنی ہے, شاید یہ ان کے لیے ریکارڈ ہی نہیں کیا گیا. یہ ریکارڈ کیا گیا ان کانوں کے لیے جو سماعت رکھتے ہیں, جو سماعت کے بعد چیزوں کو ڈائجسٹ کرنا جانتے ہیں اور اس پر عمل درآمد کرنا جانتے ہیں. جاز چاہیں گے. السلام علیکم.